Diamond, square, then again diamond, then again square. If you have a graph paper, it is very easy to make. This kind of pattern you make, and now you can start with a set of numbers, and then it is a very interesting pattern will emerge, and you can use it to practice your subtraction. I have used it in our classes to let our kids practice subtraction. It's a very interesting thing. So I will give you a set of numbers to start with. Say here you write your number 1466. Here you write 2115. Here you write 5212, and we define this point as 7088. Now the idea is like that. You have 4 numbers 1, 2, 3, 4. They are here 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. And now you subtract these 2 numbers and write the result here. Subtract these 2 numbers, write the result here. Subtract these 2 numbers, write the result here. Subtract these 2 numbers, write the result here. When you subtract one, take the larger one. So when you subtract these two, 2115 minus 1446, it will be 649 here. Here 5212 minus 2115. If you do this, it will be 3097. This is this point, this point. This is this point. And now when you do this subtraction, 7088 minus 5212, the result would be 1876. Now this, if you subtract 7088 minus 1466, okay, the result would be 5622. Now you have these fresh new numbers. You don't have to give your student or your son or daughter subtraction exercise. It will generate new set of pattern. Continue doing. Now you have this new set of number 5622, 649. So what you do? You subtract 649 from 5622 and write the result here. Once you get the hang of it, you would say, my goodness, this is very interesting exercise. So you write 4973 here. This is the subtraction of these two. Now what you do? These two squared 649 and 3097. Okay. This you subtract and write 2448. Now these two, and then diamond. These two, this line goes to diamond here. Subtraction of this and this goes here. Result. Now when you subtract larger one 3097 from 1876, you write 1221. When you subtract these two, 5622 and 1876, the result would be 3746. Okay, surprises. Now once you are done with this, then you do the same thing. This minus this goes here. This minus this goes here.
this minus this goes here, this minus this goes here. Continue doing it and you will be met with a huge surprise. And every time you can cook up a new exercise just by giving 4 numbers. The whole pattern will emerge, the whole new game will emerge. Okay, now you have 3746 and 4973. So if you subtract 4973 and 3746, the answer is 1227. This is point here. Now this in fact lies here, this point is here. Okay, so 4973 minus 2448, if you subtract here, it will be 2525. This minus this, 2448 minus 1221. Okay, once you subtract these two, 2448 and 1221, the answer would be 1227. So this is this point. Now new numbers are emerging. See, this is elegance and beauty of math in action. More than doing arithmetic, the kids have to fall in love with numbers. They have to start appreciating the beauty and elegance of numbers and the patterns that emerge out of it. बाकी क्या है, बाकी तो कर ही लेते हैं. सब्ट्रैक्शन कितना करना है बोलो. हाँ, वो तो कर ही लेगा ना, सब्ट्रैक्शन तो आता है उसको. द क्वेश्चन इज फॉलिंग इन लव विद पैटर्न. कि भाई पैटर्न ढूंढा जाए इंसान को, वो कैसे ढूंढेगा. अब ये 3746 इज हियर. Okay, another one is 1221. If you subtract this, the answer is again, you see, 2525. Is it 5? Yes, 2525. Now you have new set of numbers, 1 2 3 4. अब इनसे क्या बनाना है, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए अब की बार. अब आएगा क्या, अब आएगा डायमंड का पॉइंट. हो गया 2525. ओके, अब यहाँ देखो क्या आएगा, 2525 और यहाँ देखो 2325 और 1227. अब देखो, अब हमें क्या करना है, 2525 माइनस 1227 जब करते हैं, यहाँ आता है 1298. फाइन. नाउ इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 2525 माइनस 1227. हियर इज 1298. डू यू सी एनी पैटर्न इमर्जिंग नाउ. देखा, देख लिया. अब इसको इसमें से माइनस करो. 2325 माइनस 1227, 2325 माइनस 1227 कितना आया, 1098. नो, इट इज़ 2525. यहाँ आ गया ये 2525 माइनस 1227. अगेन आ गया ये 1298. अब यहाँ से इसको माइनस करो, वही तो है 2525 माइनस ये आ गया 1298. अब क्या करना है, एक और बनाना है ऐसा ही. देखो, ये बना और यहाँ आ गए दोबारा से. अब हमने क्या सोचा था भाई, हमने यही तो सोचा था कि यहाँ का और यहाँ का जो आएगा डिफरेंस, उसे यहाँ लिखेंगे. लिख दिया ना 0. यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे 0. इसका और इसका जो डिफरेंस लिखेंगे 0. इसका और इसका जो डिफरेंस लिखेंगे 0. देखा क्या हुआ, कहाँ से चालू हुए थे आप, चालू हुए थे 1466, 2115, 7088 और 5212 से आ गए कहाँ, 0 0 0 0. Here is 0, here is 0, here is 0, here is 0. अगर आपको स्कूल मैथ करना है, यू आर वेलकम टू डू इट. अगर मैथमेटिक्स को
मैं इंटरेस्ट जगाना है, आई एम ऑफरिंग यू अ न्यू थिंग ये। कोशिश करो बच्चों को नई चीज़ सिखाओ। अगले सेट ऑफ नंबर्स ट्राई करो, अ न्यू पैटर्न विल इमर्ज। क्यों लेना है ये? इनके बजाय छोटा बच्चा है आपका, दूसरी क्लास में, पहली क्लास में, अरे दूसरी क्लास के बच्चे तो खैर यही कर लेंगे, पर चलो छोटा बच्चा है, इनको छोड़ो ना। आप इनको ऐसा दो 9 8 5 4, स्टार्ट कर दो 9 8 5 4 से, सेम पैटर्न, न्यू सेट ऑफ पैटर्न विल इमर्ज। आएगा जीरो पे ही, कुछ भी कर लेना। द किड विल रिफ्यूज टू बिलीव इट कि वो जीरो पे आ भी सकता है। कैसे आएगा? करूँगा दोबारा, करो। ऐसी वर्कशीट प्रिंट कर लो एक कागज़ पे, बच्चों को नंबर देते जाओ, सब्ट्रैक्शन को छोड़ेगा नहीं बच्चा। सवाल ये है कि आप खुद कितने इनोवेटिव, तभी तो बच्चा इनोवेटिव बनेगा ना। नए नए तरीके से सिखाओ। क्या किताब को लेकर के बैठे रहते हैं हम लोग, बच्चों को एक ही कहते हैं, भैया मैं तो ये नंबर देता हूँ चल कर। अरे यार, दिस क्वेश्चन विल इमर्ज इनटू इट विल टेक देम इनटू अ न्यू अरिथमेटिक वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होगा 9 8 5 4 से, एंड देन यू सी कहाँ जाके पहुँचेगा। चलो ठीक है, doing this on whiteboard takes time. I'll show you on in Excel. ये Excel हम शीट कवर करते हैं, Excel पे हमारी जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग ये सिखाते हैं। दिस क्लास इज़ नॉट फॉर इट, मगर सेम चीज़ हम Excel में करके we can demonstrate it to you कि क्या क्या पॉसिबल है। I'll give you some examples in next few shots. तो करिए, बच्चों को सिखाइए नए तरीके से। अरिथमेटिक हो रहा है, जो नंबर देंगे सवाल, 4 अरिथमेटिक के क्वेश्चन दोगे, यहाँ कितने क्वेश्चंस बने देखिए, अल्टीमेटली 0 0 0 0 पे आया। तो आप क्वेश्चन देंगे, बच्चा सवाल करेगा हल, आप उसे चेक करोगे ना। अल्टीमेटली आपने बच्चे को सवाल दिए ये 4, कौन चेक करेगा बच्चे का सवाल? आप चेक करोगे ना। यहाँ कौन चेक कर रहा है? यहाँ कौन चेक कर रहा है? बच्चा खुद चेक कर रहा है यार। यहाँ जब तक 0 नहीं आएगा आपका गलती है कहीं ना कहीं, चेक करो। अल्टीमेटली यहाँ 0 आना चाहिए लास्ट में। हो गया ना, आपने अपनी पावर ही बच्चे को दे दी। यू सेलेक्ट योर नंबर्स हियर, यू नो द पैटर्न। खुद का नंबर सेलेक्ट कर, खुद इसको एक्सरसाइज कर, और खुद ही आंसर चेक कर, क्योंकि अल्टीमेटली तो 0 0 0 आ रहा है। अब बताओ ये सेल्फ लर्निंग हुई कि नहीं हुई? बच्चा खुद ही सीखेगा, खुद ही नंबर तय करेगा, खुद ही क्रॉस चेक करेगा और खुद ही आगे बढ़ेगा। अभी वो करेगा 1 डिजिट से, करेगा 2 डिजिट से, करेगा 3 डिजिट से, करेगा 4 डिजिट से, करेगा 6 डिजिट से। कौन रोक रहा है? 15 डिजिट से कर। बात यह है कि बच्चों को ऐसी एक्सरसाइजेज देना जिसमें उनको एम्पावर्ड महसूस हो, जिन्हें पता है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर किसी के पास ले जाने की ज़रूरत है, मैं खुद ही चेक करके बता दूंगा सही आंसर है कि नहीं। और जहाँ गलती होगा ना, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, खुद ढूंढेगा वो। बिकॉज जब यहाँ 0 नहीं आएगा, he would realize यार I have made a mistake and this is a fun exercise for him। तो वो दोबारा से फिर पूरा ढूंढा खकोरी करके निकाल देगा आंसर कहीं। ये है, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी बेस्ड मैथ लर्निंग। मोर रीजनिंग, मोर लॉजिक, जस्ट एनफ मैथ, जस्ट एनफ मैथ्स हियर, जस्ट एनफ सब्ट्रैक्शन। बट दिस एक्सरसाइज गोज वे बियॉन्ड सब्ट्रैक्शन। नज़रिए का फ़र्क है, नज़रिया बदलिए, मैथमेटिक्स का अप्रोच बदलिए, लर्निंग बढ़ जाएगी। लर्निंग से ज़्यादा उसका एप्लीकेशन बढ़ जाएगा। इस्तेमाल के लिए है ना मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अगर यहाँ 0 नहीं आया, देन यू हैव टू गो बैक एंड सर्च कहाँ से गलती हुई है। इस तरह से मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ क्या क्या मुमकिन है इसमें। हाँ, 1 डिजिट से लेकर के 10 डिजिट तक। और ये एक्सेल की शीट हम किसी भी ग्रेड 2 के बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये एक्सेल में कैसे बनाना है। डोंट बिलीव इट, हाँ, नॉट मैनी पीपल बिलीव। देखो, आप करो जितना कर सकते हो। तो ये देखिए, ये एक छोटे बच्चे, किसी भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे जिसको कि 10 तक गिनती का प्लस माइनस आता है, वो कर सकता है। यहाँ 7 चुना गया है, 3 चुना गया है, 8 चुना गया, 8 चुना गया, वॉट एवर यू सी इन ग्रीन, 7 8 3 8। इससे आप कैलकुलेशन शुरू करो, ख़त्म होगा 0 पे ही। यहाँ देखो, 7 - 3 4, 3 - 8 5, 8 - 8 0, 7 - 8 1। इतना तो कोई बच्चा कर सकता है। बट दिस एक्सरसाइज इज सो इंटरेस्टिंग, ही विल नॉट स्टॉप। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 आ गया, उसके बाद में यहाँ लास्ट में 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। नाउ आई एम यूजिंग अ रैंडम नंबर जनरेटर। तो यहाँ पे अभी देखो 8 6 4 6 से आ गया, ठीक है। अभी मैं कहूँगा कि इससे दूसरा है, तो ये नए नंबर्स आ गए, 3 8 7 6। स्टिल यू आर एंडिंग अप एट 0। हाँ, नाउ
you can say now again new set of numbers ending up at 0. It's a good exercise, करते जाओ. ओके, अब देखो यहाँ ये है वही चीज़ है 9 का सिंगल डिजिट. नाउ द सेम नंबर आई हैव चूजन अ 2 डिजिट पैटर्न. नाउ यहाँ पे सारे नंबर जनरेट हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं वही 0 पे जाके. यहाँ देखो 0 0 0 0. ये हम एक्सेल शीट में बनाया है. ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं. जो हमारे क्लास में एक्सेल की क्लास होती है उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे मैथ को एज ए रिसर्च टूल इस्तेमाल करना है. सो आई हैड दिस एक्सेल, दैट्स वाई आई कुड टेस्ट सो मैनी नंबर्स. नहीं तो वाइट बोर्ड पे करते करते पागल हो जाएगा आदमी. सी नाउ दिस इज़ 20. अभी दूसरा नंबर ले लो. यहाँ पे क्या दिक्कत है, दूसरे नंबर जनरेट करो. ये लो दूसरे नंबर आ गए 40 63 64 आएंगे ये लास्ट में जाके 0 पे ही. वाइट बोर्ड पे काम करो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे, कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, सारे नंबर 0 पे क्यों जा रहे हैं, वो जानना चाहेगा. पहले तो उसकी सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी और उसे खुद ही चेक कर सकता है कि वो 0 0 0 0 जब यहाँ आ गया तो इसका मतलब उसका आंसर सही है. आप सोचते हैं कि 3 नंबर पर काम नहीं करेगा. 3 नंबर में मैंने टेस्ट किया हुआ है, आप खुद टेस्ट करो. अगर आता है तो मुझे बताओ. देखो मैंने 3 पे टेस्ट किया. ये नंबर हैं मैंने जो चुने 1 2 3 4. ये 4 नंबर्स हैं और इसको मैंने रैंडम नंबर जनरेटर से दूसरे करके दिए. यहाँ पे जाकर कहता हूँ 0 0 0 0. ये 58 आ गया 58 आ गया 58 58 दैन अगेन 0. ये 3 डिजिट है. 3 डिजिट के बाद आप अगर इफ़ यू एम हायर यू गो फॉर 4 डिजिट्स. ये हमने 4 डिजिट पे टेस्ट किया वो 1. ये रैंडम है नंबर, ये बदल जाएंगे बट स्टिल ये देखो बदल गए. 5 7 7 3 दिस ये आ गया आंसर. आपको दूसरे नंबर चाहिए, ये दूसरे नंबर आ गए. ये दूसरे नंबर से आज ख़त्म होगा ये पैटर्न 0 पर ही. सो बच्चों को जब ऐसा अमेजमेंट सामने आता है तो बच्चे फिर कहते हैं कि यार ये हो कैसे रहा है. फिर वो जानना चाहेगा, वो समझेगा कि लॉजिक और रीजनिंग का मतलब क्या है. सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम एनी मोर. वो सब्ट्रैक्शन तो कर ही लेता है मगर ये एक एनकरेजमेंट है जिससे वो सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेगा. और पेरेंट्स तो मरे जाते हैं इसी बात पे ना कि वो प्रैक्टिस करे सब्ट्रैक्शन की. बाकी लॉजिक और रीजनिंग पे ध्यान कौन देना चाहता है, पर अगर ध्यान देंगे तो उसका फ़र्क पड़ेगा. तो ये एक एक्सरसाइज है, पसंद आए करिए. और एक्सेल शीट बनाई जा सकती है, इसकी कोई भी बच्चा बना सकता है. हमने क्लास में बहुत सारी एक्सरसाइजेज की हैं ऐसी. तो ये आसान है, करिए. वाइट बोर्ड पे करिए, ग्राफ पेपर लेके करिए. 1 इंच का ग्राफ पेपर ले लो, उस पर बनाओ. अरे फ्लोर पे बनाओ, क्या दिक्कत है. हैव फन विद योर किड्स. आप भी इन्वॉल्व हो मैथमेटिक्स में, मज़ा आएगा. ठीक है. ऐसे दूसरा नंबर ये लो, ये दूसरा नंबर आ गया आपका. ये भी जाके 0 पे ही ख़त्म हो रहा है. लास्ट में आ रहा है 7 1 1 7 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 और ख़त्म होगा वो 0 पे ही. ये देखो अभी कितना बड़ा आया 4 0 8 6 5 3 6. इनसे ख़त्म होता है. यहाँ देखो 4 1 2 पे जाके ख़त्म होगा. 4 1 2 4 1 2 एंड देन इट विल बी 0. इट इज़ ए ह्यूज स्टेप. पहले ये स्टेप होगा, फिर 2 3 4 5 स्टेप में जाके ख़त्म हो रहा है ये. लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बच्चों को इंट्रोड्यूस की जा सकती है. पहले तो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करो. लोग कहते हैं मैथ्स में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है. मजाक है ये. बच्चे की काबिलियत के साथ मजाक है. कौन सा बच्चा है जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है. सारे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड है. वजह तो दो कि क्यों इंटरेस्ट लूँ भाई तुम्हारे मैथ्स में. मैं वो तुम्हारा मैथ है. जिस दिन ये मैथ मेरा बन जाएगा आई विल बी इंटरेस्टेड इन इट. तो ये मैथ्स को उसका बनाओ, इस एक्सरसाइज को उसकी बनाओ. ये एक्सरसाइज उसकी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ वो खुद चेक करेगा कि 0 आ रहा है. किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उसको. ये एक्सरसाइज आपके हाथों से निकल के उसके हाथों में पहुंच चुकी. ये एक्सरसाइज उसके हाथों में पहुंच चुकी है बच्चे के. अब बच्चा पावरफुल हो गया है. वो खुद चेक करेगा कि उसका आंसर है कि नहीं. और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सारे एंड्स पे 0 ना आ जाएं. सो गुड लक, हैव फन. और ऐसे खुराफाती आइडियाज़ जो हैं मैथमेटिक्स लर्निंग के हैं, अगर सीखना है तो हमारे साथ फॉलो करते रहो. कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूँगा मैं. जब तक ये होम स्कूलिंग इंडिया वाले अलाउ करते हैं तब तक करेंगे. ओके बाय.